নমস্কার। আজকে আজকে আমার ডেলিভারির সেকেন্ড দিন। ডেলিভারি হওয়ার পর মানে সেকেন্ড দিন এখনও 48 আওয়ার্স কমপ্লিট হয়নি। তো আজকে আমি ডিসচার্জ নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি আমার বেবিকে নিয়ে। কারণ হচ্ছে কি, আমি পিয়ারলেস হসপিটালে ফার্স্ট যখন আমি চেক আপ করাতে আসি, অ্যান্টিনেটাল চেক আপ, তো আমি ডক্টর তনুকা ম্যামের আন্ডারে এখানে অ্যাডমিট হয়েছি, মানে চেক আপ করাতে এসেছিলাম। আমাদের ফার্স্ট থেকেই হচ্ছে গিয়ে একটু প্ল্যান ছিল যে যদি কিছু প্রবলেম না হয় আমরা নর্মাল ডেলিভারির দিকে যাব, মানে নর্মাল ট্রায়ালের দিকে যাব। তো আমরা সেই মতো হচ্ছে গিয়ে রেগুলার চেক আপ করাইও, এবং কোনো কিছু প্রবলেম না থাকার জন্য তো আমরা সেটার কারণে হচ্ছে গিয়ে ভর্তিও হই 10 তারিখে। সরি, 10 তারিখে নয়, 8 তারিখ। 8 তারিখ। তো 8 তারিখে রাতে আমরা হচ্ছে গিয়ে ভর্তি হই, কারণ সকালে যখন আমি ডক্টর দেখাতে এসেছিলাম তখন উনি চেক করে বলেছিলেন যে বাচ্চার দানিটা ওপেন হয়েছে বা বাচ্চা হওয়ার রাস্তাটা শুধুমাত্র খুলেছে। তো সেই কারণে আমি আবার বাড়ি গিয়ে আবার খেয়ে দিয়ে তো রাত্রের দিকে এসে আমি ভর্তি হই। কিন্তু প্রায় 48 আওয়ার্স চলে যাওয়ার পরেও আমার হচ্ছে গিয়ে কোনো বাচ্চাদানি আর বেশি খোলেনি, মানে ওই 1 আঙ্গুল মতো খুলে থেকে গেছিলো। তো তারপর 10 তারিখ সকালে ম্যাডাম আমাকে হচ্ছে গিয়ে একটা জেল দেন বাচ্চাদানি দিয়ে। তো তারপরে প্রায় 3 থেকে 4 ঘন্টা পরে আমার ব্যথা শুরু হয়। তো ব্যথা শুরু হতেই মানে আমি বুঝতে পারছিলাম যে মানে আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব নয় নর্মাল করাটা। কারণ মানে শুরুতেই যে ব্যথাটা শুরু হয়েছিল হয়তো, মানে এটা দেখা আলাদা ব্যাপার আর সহ্য করাটা সম্পূর্ণ আলাদা। মানে আমি হয়তো ভেবেছিলাম যে ম্যামকে দেখে আমি বলেও ছিলাম যে ম্যাম আর হবে না আমার দ্বারা, মানে সম্ভব নয়, তো আপনি সিজারিয়ানে মানে সিজার করে দিন আপনি, মানে ফাইনালি। তো ম্যাডাম আমাকে হচ্ছে গিয়ে বললেন যে এতদিন তুমি যখন ওয়েট করেছো নর্মালের জন্য, তো ব্যথা তো হবেই, এটা তো জাস্ট শুরু, এটা তো জাস্ট শুরু। তো তোমাকে হচ্ছে গিয়ে সহ্য করতে হবে। এবং এখানকার যে সমস্ত স্টাফ, সবাই, সমস্ত নার্সিং স্টাফ, ডক্টর, প্রত্যেক গাইনোকোলজিস্ট মানে এসে আমাকে হচ্ছে গিয়ে বোঝালেন যে যখন এতটা সময় এসেছো আর মাত্র 6-7 ঘন্টার জন্য তুমি পিছিয়ে যেও না। একটু কষ্ট হবে কিন্তু কষ্টটাকে তোমাকেই সহ্য করতে হবে, সেটাকেই তোমাকে ওভারকাম করতে হবে। এবং এখানে যে বাচ্চা ঠিক আছে কিনা সেটার জন্য হচ্ছে গিয়ে চেক আপ যেগুলো হয়, মনিটরিং যেগুলো হয়, সেগুলো রীতিমতো সব কিছু হয়েছে। তো বেবি যেহেতু ঠিক ছিল, তো সেই কারণে ডক্টররাও ওয়েট করেছে যে তুমি নর্মালে করো। এবং প্রত্যেকটা স্টাফ আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে। এবং আমি ডক্টরকে বলি যে আমার হাজব্যান্ডকে ডেকে দেওয়ার জন্য, যাতে আমি ওনার সাথে একটু ডিসকাস করতে পারি। তো উনি এসেছিলেন। फिर मैंने मैडम से बात किया तनुका मैडम से कि अगर आप मेरे को थोड़ा पास में रखने दो तो एक मॉरल सपोर्ट रहता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम पे अगर फैमिली मेम्बर नहीं होता है तो पेशेंट को थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स आता है कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो फिर मैडम को मैंने वो वॉकिंग पे करवाया, उनको बहुत पेन हुआ, मतलब इतना क्रूशियल पेन हुआ कि मुझसे देखा नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि चलो ठीक है, अभी जो पेन है वो कुछ टाइम के बाद में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है। फिर भी मैं उसको, एक मोमेंट ऐसा भी आया था कि मैं सोचूं कि चलो ठीक है बहुत पेन हो रहा है, सर्जरी के लिए प्रीफर कर देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी जो पेन है इतनी देर तक अगर कंट्रोल किया है तो और कुछ टाइम की बात है, अराउंड 2-3 आवर्स और वेट किया। उसके बाद में फिर जैसे ही वॉक वगैरह करवाया, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, बीच बीच में सपोर्ट दे रहा था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर उसके बाद में फिर से वॉकिंग करवाया। तो ऐसे करते करते जो टाइम पीरियड है वो इजीली निकल गया था, लेकिन वो बहुत क्रूशियल टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि मीन्स कुछ भी कहना मुमकिन नहीं था। बट ये है कि अगर आपका रहता है कि आप थोड़ा थोड़ा अगर वॉकिंग करवाओगे, पेन होगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली फिर डॉक्टर्स वगैरह है यहाँ पे जो गायनिकोलॉजिस्ट है, फिर जो जैसे डॉक्टर तनुका मैडम है, उनके जो भी सबॉर्डिनेट्स टीम वर्क्स है, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि वो टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, ठीक है। और जो स्टाफ है, बाकी स्टाफ भी टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, बेबी डिस्ट्रेस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से वो टाइम टू टाइम जो चेक कर रहे हैं उससे हमें श्योरिटी हो गया, चलो ठीक है अभी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो पेन है, बाकी बेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम प्रोसीड करवाते हैं। अगर चांसेस रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी का तो हम नॉर्मल डिलीवरी ही करवाते हैं।
फिर उसके बाद में जैसे ही बच्चेदानी का जो मुंह है थोड़ा सा जैसे ही और डायलेट हुआ, इसको सर्वाइकल डायलेशन बोलते हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत डायलेशन हुआ, डायलेशन होने के बाद में फिर थोड़ा सा और मोटिवेट किया मैंने। फिर उसके बाद में जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए आगे प्रोसीड किया तो लेबर रूम में उनको लेके गए। लेबर रूम में ले जाने के बाद में काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पर भी आधा एक घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि बहुत पेन हो रहा था। डायलेशन अभी भी थोड़ा सा बाकी था, बच्चेदानी का मुंह है थोड़ा सा और खुलना बाकी था। उसके बाद में जैसे ही बेबी बाहर आया, काफ़ी सारे स्टिचेज आए, कट लगे, टाँके भी लगाने पड़े। लेकिन जो भी हमारा जो हमने सोचा था फ्रॉम द बिगनिंग से जैसे ही हमने सोचा था वो हमने फाइंड आउट किया। नाउ अभी डे 2 है। तो ये मेरी गुड़िया है, बहुत ही प्यारी गुड़िया है, इतनी सुंदर गुड़िया मुझे हुई है और शी इज़ माई वाइफ। एंड हम बहुत खुश हैं इस बात को लेके कि चलो हमने जो बिगनिंग से जो सोचा था वो फाइनल हमें आउटपुट मिल गया। थैंक यू फॉर हियर दिस।